Welcome everyone to Garg Institute, and in this video we will discuss Poisson distribution. And in our last video we have discussed binomial distribution. Therefore the physical conditions are same in case of binomial distribution and Poisson distribution. That is, there are only two mutually exclusive, exhaustive and disjoint events, and probability of success is same in each trial, and all the trials are independent. But there is one difference only: Poisson distribution and normal distribution, binomial distribution, sorry, that binomial distribution with parameter n and p follows Poisson distribution with parameter lambda if n tends to infinity and p tends to 0, and np, that is equal to lambda, is finite. That is, n is very small and n is very large, p is very small, but the mean factor, that is lambda, is constant, and this is finite. Okay. In fact, binomial Poisson distribution is one of the most important distribution in the field of statistics. It is widely used in the field of queuing theory, reliability, stochastic process, birth process, etc. And we can say that Poisson distribution, in case of Poisson distribution, we are more interested in successes and not interested in failures. That is what we want to say. We want to say that Poisson distribution follows if we are considering only number of successes and we are not considering number of failures. That is, when only success matters for us. There are some examples where Poisson distribution is used. One of the example is number of deaths in a city by cancer. What do you mean? Not by pandemic, in fact not by coronavirus type, corona disease type. It is by when the death by cancer. How many persons of a city can die? All the persons are subject to die. But only 1, 2, 3 or 5 persons per day will expire in a city. Therefore n is approx 10 lakh and p is 5 by 10 lakh, very small, and n is very large, but np, when I product it, it will be 5. That np is 5 finite. Therefore we can say this is the ideal case for Poisson distribution. Number of telephone calls on a cell phone मीन्स आपके पास क्या है, एक सेल फोन है, आपके पास एक छोटे से इंटरवल के अंदर कितनी कॉल आ सकती हैं? एक आ सकती हैं, दो आ सकती हैं, आ कितनी सकती थी पता ही नहीं है, इन्फिनिटी है, तो कितनी कॉल आ सकती थी वो इनफाइनाइट है, आई कितनी, एक या दो, तो इनका दोनों का प्रोडक्ट का पी कितना होगा, 2 बाई इन्फिनिटी समथिंग लाइक दैट, और इसके वजह से आपका जो लैम्डा हुआ वो फाइनाइट होगा, एक या दो जो भी कॉल आपके पास आई। तीसरा एग्जाम्पल इसका आप ले सकते हैं, नंबर ऑफ aircraft accidents in an interval of time. मीनिंग कितने एयरक्राफ्ट आपके पास डेली उड़ाते हो आप? लाखों की गिनती में होते हैं, गिन तो ना सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हर कंट्री में कितना हो रहा है। बट स्ट्राइक कितने कर रहे हैं, कितनों का एक्सीडेंट हो रहा है? एक या दो का एक्सीडेंट हो रहा है हार्डली। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना है? 2 बाई 10,000, मान लीजिए 10,000 के अप्रॉक्सिमेटली हम कैलकुलेट करवा भी लेते हैं, तो 2 बाई 10,000, तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो गई पी। एन आपका 10,000 है, बहुत बड़ा है, पी बहुत छोटा है, प्रोडक्ट कैसा है? प्रोडक्ट आपका फाइनाइट है, दैट इज वाई इट इज फॉलोइंग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। फोर्थ यू कैन से नंबर ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक्स on a book, on a page of book। किसी पेज पे कितने वर्ड्स हैं? बहुत सारे वर्ड्स हैं, करीब 500 के करीब वर्ड्स तो होंगे ही होंगे ना। तो एक 500 के वर्ड्स के करीब में एक या दो मिस्टेक हैं, वो मैटर करती हैं। ठीक कितने वर्ड हैं ये कोई मैटर नहीं करता। तो इस टाइप की कंडीशन में भी आप क्या यूज़ करेंगे? इस टाइप की कंडीशन में भी आप पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, bad component
मेड बाय ए गुड रेप्यूटेड फर्म। किसी कंपनी ने 1000 पीस बनाए, 1000 पीस में से कितने ठीक निकले, रेप्यूटेड फर्म है तो ठीक निकलना तो उसका काम ही है, बट यदि इसमें से एक या दो भी खराब निकलता है तो वो मैटर करता है। तो इन सभी कंडीशंस के अंदर हम कह सकते हैं कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो होता है, ठीक है। तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज नथिंग बट ए स्पेशल केस इन केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव n tends to infinity, p tends to 0, then we say that it is following a Poisson distribution. Now the mean of the Poisson distribution is lambda, because in case of binomial आपको याद होगा पिछली बार वीडियो में आपने चेक किया होगा, तो मीन बाइनोमियल का कितना था np, तो यहाँ पे मीन कितना है इसका, यहाँ पे मीन np इक्वल टू लैम्डा मान के चल रहे हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, मीन लैम्डा है। और वेरिएंस कितना होता है पॉइसन का, वेरिएंस भी पॉइसन का लैम्डा होता है। और ये बात आपको याद रखनी है, इन दोनों आर्टिकल्स के प्रूफ हम लास्ट ऑफ द वीडियो बेंड करने वाले होंगे तब करेंगे, उससे पहले आप इसका जस्ट इस रिजल्ट्स को याद कर लीजिए, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन हमें जरूरत पड़ने वाली है। एक रिजल्ट हम बार बार पिछली बार भी हमने किया है, हमारा पैटर्न रहा है वीडियो सीरीज का, कि हम सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि इसका पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होगा। तो px होता है बच्चे इसका e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज़ टू पावर x डिवाइड बाई x फैक्टोरियल, और x मूव्स फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, x moves from 0 to infinity. ओके, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मास फंक्शन जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज़ टू पावर x डिवाइड बाय x फैक्टोरियल। अब इशू क्या आता है कि अब ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मास फंक्शन है, हमें कैसे पता चले, और ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है। तो इसके लिए मैंने पिछले वीडियो में बात की थी कि आपका जो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ है वो कितना आना चाहिए, वो 1 आना चाहिए। ये जो आर्टिकल हम शुरू में किस लिए कराते हैं, क्योंकि आपको यदि कोई भी आर्टिकल किसी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड करना हो, कोई प्रूफ आ जाए, तो आप पेपर में तो आपको इसी चीज़ के का आपको मोस्टली आर्टिकल्स में आपको यूज़ करना होता है। तो इसका तो पहला आर्टिकल हम क्या करेंगे, शो दैट px is equal to e power lambda x divided by x factorial is a probability distribution. Therefore इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है कि p0 plus p1 plus p2 up to infinity is equal to 1। तो यदि सभी x की वैल्यूज के लिए इसका मैं प्रोबेबिलिटी निकाल के उसका सम करूंगा तो वो कितना आना चाहिए, वो 1 आना चाहिए। तो इस आर्टिकल को प्रूव करने के लिए ना अपने को फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। वो क्या होता है, ये मैक्लॉरेन सीरीज आप देखेंगे तो मैक्लॉरेन सीरीज के अंदर फॉर्मूला होता है e रेज़ टू पावर x इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इस रिजल्ट का आपको पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ करना पड़ता है बार बार, और क्योंकि आप इस रिजल्ट का यूज़ करते हो तो इसलिए आपको ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं यदि आपको ये फॉर्मूला इसका याद है। तो p0 क्या हो जाएगा बेटा आपका, e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा, lambda raised to power by 0 factorial, e raised to power minus lambda, lambda raised to power 1 by 1 factorial, e raised to power minus lambda, lambda square by 2 factorial and so on। e raised to power lambda कॉमन ले सकते हैं माइनस लैम्डा, तो किसी भी चीज़ की पावर 0 कितनी होती है, 1 होती है, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, और ये आपकी सीरीज बन गई। तो इससे यदि आप इसको कंपेयर करें तो ये चीज़ क्या आ रही है बेटा, ये चीज़ आ रही है आपकी e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा इंटू e रेज़ टू पावर लैम्डा इक्वल टू 1। देयरफॉर वी कैन से दिस इज ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल, जनरली इसको तो मैंने बाइनोमियल के केस में तो मैंने इसे लास्ट में करवाया था, बट इस केस में हम इसे पहले करेंगे क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल रहता है जब आप इसके न्यूमेरिकल करते हैं पॉइसन के, और इस रिजल्ट को आप याद रखना भी कंपेरेटिवली ईजी है और इसको यूज करना बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है पॉइसन के केस में। रिकरेंस रिलेशन इन प्रोबेबिलिटीज ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में रिकरेंस रिलेशन कैसे निकालेंगे। स्टेप्स बच्चे बिल्कुल वही हैं जो आपने बाइनोमियल में यूज़ किए हैं। बाइनोमियल में हमने क्या किया था, बाइनोमियल में भी हमने ये किया था
पी ऑफ एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स प्लस वन इस केस में क्या होगा, ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज टू पावर एक्स डिवाइड बाई एक्स फैक्टोरियल, और पी ऑफ एक्स क्या आएगा, ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज टू पावर एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा से ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा, एग्रीड। तो जब ये कैंसिल आउट करेंगे तो आप यहाँ पे क्या आने वाला है, पी एक्स प्लस वन डिवाइड बाई पी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से ये कैंसिल, क्या है ऊपर लैम्डा, यहाँ से ये कैंसिल, नीचे क्या आया एक्स प्लस वन। तो आपके पास क्या फॉर्मूला बना इसका रिकरेंस रिलेशन का, रिकरेंस रिलेशन का फॉर्मूला ये है लैम्डा बाई एक्स प्लस वन इंटू पी एक्स। तो सिर्फ बच्चे यहाँ पे ज़्यादा आर्टिकल्स नहीं है, ज़्यादा फॉर्मूलाज भी नहीं है पॉइसन में, बट मेजर इशू क्या होता है पॉइसन के केस में कि आपको ये पहचानना भारी होता है आपके लिए काफ़ी बार कि इसके अंदर पॉइसन लगेगा या नहीं लगेगा। तो उसके लिए मैंने 4 या 5 कंडीशंस आपको इनिशियली बताई हैं। तो जिन एग्जांपल्स में मैंने आपको कहा कि इन एग्जांपल में पॉइसन लग रहा होता है, तो उन एग्जांपल्स में भी आप स्पेशली मेंशन करके भी ध्यान रख सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पे पॉइसन लग नहीं रहा होगा, बट एग्जामिनर कहेगा कि पॉइसन लगाओ। यदि आप एग्जामिनर कहता है कि पॉइसन लगाओ तो अपने पॉइसन लगाना ही लगाना है, ठीक है। इसके अलावा जब भी आप पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन करेंगे तो एक इशू रहेगा आपको ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा वाला। तो उसको साइंटिफिक कैलकुलेटर में कैसे देखते हैं उसको मैं बीच में आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट अक्सर उसके बाद हम क्या करते हैं, अब 3 या 4 क्वेश्चन करेंगे। If the probability of an individual suffers a bad reaction from a certain injection is 0.001, determine the probability that out of 2000 individuals exactly 3 more than 2 or more than 2 suffers from the bad reaction। मेन इशू क्या है कि यहाँ पे आपको पता करना होता है कि यहाँ पे देखो 2 ही केसेस हैं, या तो सफ़र करेगा या सफ़र नहीं करेगा, ठीक है। अब उसके बाद तो इसका मतलब पहली कंडीशन तो पॉइसन की सेटिस्फाई हो रही है, पर बाइनोमियल की भी सेटिस्फाई हो रही है साइमल्टेनियसली। 2 आदमियों को अलग अलग इंडिविजुअल्स के लिए प्रोबेबिलिटी अलग अलग तो होगी नहीं, सेम होगी, आपस में वो इंडिपेंडेंट भी हैं। इसका मतलब बाइनोमियल और पॉइसन की दोनों कंडीशन की सेटिस्फाई हो रही है। बट यहाँ पे जो सैम्पल साइज़ है वो कितना है, सैम्पल साइज़ आपका 2000 है। तो यदि आपका सैम्पल साइज़ 25 से लेस है तो आप बाइनोमियल की तरफ जाएंगे, पर सैम्पल साइज़ यदि आपका बड़ा है देन यू विल मूव टुवर्ड्स द पॉइसन। उसी के साथ साथ दूसरी कंडीशन और क्या होती है कि जो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो आपकी बहुत कम होनी चाहिए। तो पॉइसन की 2 कंडीशंस थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कम होनी चाहिए और आपका नंबर सैंपल साइज बड़ा होना चाहिए, दोनों की दोनों कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसमें पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो हो रहा है। ओके, तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते वक्त आपके पास 3 स्टेप्स रहेंगे, ज़्यादा लंबे चौड़े स्टेप्स नहीं है। क्या, पहले स्टेप में आप एन निकालिए, एन कितना है आपका 2000 है, और P कितना है आपका, P है आपका 0.001। अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा, ये पॉइसन यदि आप जब भी अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप निकालेंगे NP, और NP की वैल्यू किसके बराबर होती है, लैम्डा की, जो कि पैरामीटर है पॉइसन के केस में। तो लैम्डा क्या हो जाएगा इसका 2000 इंटू 0.001 दैट इज इक्वल टू 2। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है बेटा, N बहुत बड़ा है, P बहुत छोटा है, और साथ ही साथ लैम्डा जो है आपका वो फाइनाइट है। अब हमें क्या करना है, 3 क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का px क्या होता है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का px होता है ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज टू पावर x डिवाइड बाय x फैक्टोरियल। तो फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है, एग्जैक्टली 3, एग्जैक्टली 3 मीन्स x की वैल्यू हो गई आपकी 3। लैम्डा कितना है, लैम्डा है आपका 2 रेज टू पावर 3 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। तो कितना है बेटा ये 8/6 ई रेज टू पावर -2 दैट इज 4/3 ई रेज टू पावर -2। यदि आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो आप इसका आंसर निकाल के लिखिए, और यदि आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है तो इसे आप एज इट इज छोड़ दीजिए। और ई रेज टू पावर -2 आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर में देखना आता हो तो आप लिखना, अदरवाइज इसे एज इट इज छोड़ देना, ज़्यादा बेटर चॉइस रहेगी, इसे एज इट इज छोड़ दें। सेकेंड पार्ट क्या बोलता है, मोर देन 2। मोर देन 2 का केस क्या होता है बेटा, मैंने कल भी बाइनोमियल के केस में भी क्वेश्चन ऐसा डिस्कस किया था। मोर देन 2 के केस में अपने पास क्या होता है, दिस इज P3 प्लस P4 प्लस P5
और ये क्या करते करते इन्फिनिटी तक जा रहा है, बाइनोमियल में तो फिर भी 20 थे, तो यहाँ तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इन सबको कैलकुलेट करना चाहते हैं आप। तो इनको कैलकुलेट करने का क्या तरीका है? इनको कैलकुलेट करने का तरीका ये था, मैंने आपसे कहा था कि आप इधर भी करें P0 प्लस P1 प्लस P2 इज इक्वल टू 1 हो जाता है। कल मैंने आपको इसका हिंट दिया था, तो इसका मतलब P3 प्लस P4 प्लस P5 कितना हो जाएगा? 1 माइनस P0 माइनस P1 माइनस P2। ओके, तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए 1 माइनस P0 P1 P2, दैट इज़ 1 माइनस P0 कितना होगा? e रेज टू पावर माइनस 2, 2 रेज टू पावर 0 डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल माइनस e रेज टू पावर माइनस 2, 2 रेज टू पावर 1 बाई 1 फैक्टोरियल माइनस e रेज टू पावर माइनस 2, 2 स्क्वायर बाय 2 factorial. Okay, so this is your probability that you will have more than 2 individuals suffering from bad reaction. इस क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूँ क्योंकि मोर देन 1 के केस में तो बस एक ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन सेम रहेगा। अदरवाइज इसके क्वेश्चन को आप लिख लीजिए एग्जैक्टली, नन इज डिफेक्टिव, नन इज डिफेक्टिव। नन इज डिफेक्टिव के केस में हम क्या लेंगे बच्चे? नन इज डिफेक्टिव का केस हुआ कि आपके पास आपको क्या चाहिए? सिर्फ आपको चाहिए P0। तो P0 क्या आ जाएगा? e रेज टू पावर माइनस लेमडा, लेमडा की पावर 0 डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल, दैट इज e रेज टू पावर माइनस 2। तो कई बार क्या होता है क्वेश्चन के अंदर, एग्जामिनर आपको e रेज टू पावर माइनस 2 की वैल्यू दे देता है। तो यदि इन केस वो e रेज टू पावर माइनस 2 की आपको वैल्यू दे देगा तो फिर तो आपको ये वैल्यूज़ आपको निकाल के देनी पड़ेंगी, और एग्जामिनर को सिर्फ e रेज टू पावर माइनस लेमडा की वैल्यू देनी है, बाकी कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि इफ x इज ए पॉइसन वेरिएट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 प्लस 90 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का मतलब क्या है बेटा? आपको बेसिकली वेरिएंस का अंडर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ठीक है, और वेरिएंस क्या होता है आपका? वेरिएंस आपका लैम्डा होता है। तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, इसका मतलब आपको अंडर रूट लैम्डा चाहिए। ओके, तो बेसिकली आपको निकालना लैम्डा ही है और बाकी सब काम तो बाद में हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 कितना होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू होगा आपका e रेज टू पावर माइनस लेमडा, लेमडा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 9 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 कितना हुआ? ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6 कितना हो जाएगा? ओके, तो अब यहाँ पे देखो e रेज टू पावर माइनस लेमडा थ्रू आउट हम कैंसिल कर सकते हैं, लेमडा स्क्वायर भी थ्रू आउट कैंसिल कर सकते हैं। तो e रेज टू पावर माइनस लेमडा, लेमडा स्क्वायर इस बार तो छोड़ देता हूँ, फैक्टोरियल लिख रहा हूँ बस, इक्वल टू 9, 4 फैक्टोरियल होता है कितना? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। फिर से देख लो 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, दैट इज 26। और 6 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 24। 6 फैक्टोरियल हो जाएगा आपका 720। ओके, तो यहाँ पे क्या है आपके पास? 9/24 e रेज टू पावर माइनस लेमडा, लेमडा 4 प्लस 90/720 e रेज टू पावर माइनस लेमडा, लेमडा रेज टू पावर 6। ओके, हाँ जी, अब देखें 3 8 8। ओके, तो अब हम क्या कर सकते हैं? e रेज टू पावर माइनस लेमडा, लेमडा स्क्वायर थ्रू आउट कैंसिल कर सकते हैं, 2 भी कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा ये? 1 इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर बाई 4, 3 लेमडा स्क्वायर बाई 4 प्लस लेमडा की पावर 4/8। ओके, तो अब यहाँ पे क्या हुआ बेटा? एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम लेने लगेंगे तो क्या आ जाएगा? एलसीएम लेते वक्त ये आ जाएगा लेमडा की पावर 4 प्लस 6 लेमडा स्क्वायर माइनस 8। तो आपको पता है ये पेयरिंग कैसे बनानी है, जिसका प्रोडक्ट आपका आए 8 माइनस 8 और एडिशन कितना है? प्लस 6। ठीक है, तो क्या करेंगे? लेमडा की पावर 4, ओ सॉरी यहाँ पे 4 आएगा, तो यहाँ पे 4 आने की वजह से यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। तो पेयरिंग क्या बनती है बच्चे इसके? आपको एडिशन चाहिए
3 और प्रोडक्ट क्या चाहिए -4, तो क्या आएगा +4 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर -4 equal to 0 you can say. Then the pairs will be lambda square +4 एंड लैम्डा स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है, लैम्डा की वैल्यू आ रही है आपकी, ये तो आपकी i +-2 आयोटा, तो कॉम्प्लेक्स रूट्स तो हो नहीं सकते, और लैम्डा क्या आया +-1 लैम्डा की वैल्यू -1 भी नहीं हो सकती क्योंकि लैम्डा तो NP है, NB पॉजिटिव है और PB पॉजिटिव है, तो इसका मतलब -1 भी नहीं हो सकती, इसका मतलब वैल्यू क्या है सिर्फ लैम्डा की, तो लैम्डा इक्वल टू 1, देयरफॉर यू कैन से वेरिएंस इज इक्वल टू 1, वेरिएंस 1 है तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन भी 1 होगा। चलिए 2 क्वेश्चंस और करते हैं। Suppose a book of 585 pages contains 43 typographical errors. If these errors are randomly distributed throughout the book, what is the probability that 10 pages selected at random will be free from errors? You can say that probability of success error आने पर पेज कितना है, P आपका हो गया यहाँ पे 43/585, ओके। तो ये कितना बनता है अप्रॉक्स, ये बनेगा आपका 0.073, ओके। अब इशू क्या है कि अब आप कहेंगे कि जी जो आपके पास नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, 10 है, तो 10 तो हो गया स्मॉल, बहुत स्मॉल हो गया, तो आप कहेंगे कि जी इस पे तो क्या लगना चाहिए, इस पे तो बाइनोमियल लगना चाहिए। पर टाइपोग्राफिकल एरर किस केस का केस है, यहाँ पे आपके पास एरर्स मैटर करते हैं, तो ये केस है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का, दैट्स वाई इस पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, इस पे आपको पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन लगाना पड़ेगा। तो पहला काम क्या है, n कितना हुआ अपना, n हुआ अपने पास 10, लैम्डा कितना है, लैम्डा है अपने पास NP, और NP कितना होगा 0.073 इंटू 10 दैट इज 0.73, ओके। तो अब क्या कहता है, व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी दैट द बुक पेजेस आर फ्री फ्रॉम एरर्स, तो मतलब आपका x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू हो गई आपकी 0, तो P0 कितना हुआ बेटा, e रेज टू पावर माइनस लैम्डा, e रेज टू पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज टू पावर x डिवाइडेड बाई x फैक्टोरियल दैट इज e रेज टू पावर -0.73। आप इसकी वैल्यू अपनी कैलसी से निकाल के लिख सकते हैं, और आप इसे एज इट इज छोड़ना चाहें तो भी कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन ए सर्टेन फैक्ट्री In a certain factory turning razor blades, there is a small chance 0.002 of a blade to be defective. तो P कितना है अपना 0.002, ओके। अब इशू क्या है कि यहाँ पे जब मैं ये करता हूँ उसके बाद क्या कहता है, फॉर एनी ब्लेड टू बी डिफेक्टिव दी ब्लेड्स आर सप्लाइड इन ए पैक ऑफ 10, तो n कितना है यहाँ पे, n आपका है 10, ठीक है। तो यहाँ पे भी इशू क्या है कि आपसे यह केस भी आपका वही है जहाँ पे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन लगना चाहिए कि ठीक होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ख़राब होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद वो क्या कहता है कि उन्हें सप्लाई यूज़ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे यदि उसने ये वर्डिंग लिख दी यूज़ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन तो बाकी सब चीज़ें ख़त्म हो गई। तो क्या कहता है, यूज़ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन टू कैलकुलेट द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ डिफेक्टिव, तो यहाँ पे आपसे प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रहा, यहाँ पे आपसे वो नंबर पूछ रहा है। तो पिछली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि जब वो नंबर पूछेगा तो आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद उसे टोटल से मल्टीप्लाई करना है, ओके। तो अब यहाँ पे अपने पास पहला स्टेप क्या रहेगा, लैम्डा निकाल लेंगे, लैम्डा आएगा आपके पास 0.002 इंटू 10 दैट इज 0.02, ओके। अब पहला पार्ट क्या बोलता है, पहला पार्ट बोलता है द नंबर ऑफ सेल्स विद कंटेनिंग नो डिफेक्टिव, तो P0 कितना है बेटा, P0 आपका आया e रेज टू पावर -0.02 0.02 पावर 0 डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल, तो ये कितना आया। नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे आप, इसे नंबर बनाने के लिए 10,000 पैकेट्स आपके पास टोटल हैं, तो कितना आ जाएगा 10,000 इंटू ई रेज टू पावर 0.02 का आंसर कैलकुलेटर से लिखिए। और यदि आपके पास 1 डिफेक्टिव के लिए कहता है तो क्या आएगा 0.02 पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। तो बच्चे ये आपका हुआ टोटल क्वेश्चन, और इसके अंदर यदि आपको नंबर में बनाना है तो फिर से वही क्या करना पड़ेगा, जो भी आउटपुट आपकी आ रही है वो उससे क्या करेंगे आप 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है।
तो ये चीज़ कितनी आई 200 e raised to power -2. Okay, so these are the number of boxes where you have only one defective part. Now the last question will be about fitting of a Poisson distribution, and fitting of the Poisson distribution is one of the most important question in the field of Poisson distribution, and the statement is fit a Poisson distribution the following data: x is 0, 1, 2, 3, 4 and f is 1, 0, 9, 65, 22, 3, 1. In the last video of binomial distribution also we have discussed about the fitting of Poisson binomial distribution, and we have discussed that a fitting means if a Poisson distribution is following in this data, then what should be the expected frequency of the data. ओके तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप काई स्क्वायर टेस्टिंग वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे भी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वहाँ पे यदि आप काई स्क्वायर टेस्टिंग की आप एक्सरसाइज देखते हैं, हमारा आप वीडियो चेक कर सकते हैं जो हमने एक हाइपोथेसिस टेस्टिंग सीरीज़ के अंदर बनाया है। उसके अंदर काई स्क्वायर टेस्टिंग के अंदर क्या करना होता है, आपको ये चेक करना होता है कि ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है डाटा या नहीं कर रहा है। तो उस टाइम वो फिटिंग वाला ही काम आपको करना पड़ता है। तो अब यहाँ पे फिटिंग ऑफ बाइनोमियल की तरह यहाँ पे भी अपने को पॉइसन के अंदर किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, अपने को मीन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मीन क्या होता है लैम्डा, और यदि एक बार लैम्डा निकल गया तो फिर प्रोबेबिलिटीज़ तो सारी आपकी निकल ही जाती हैं। तो लैम्डा निकालने के लिए मीन निकालेंगे। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है आपका सिग्मा fi(xi) डिवाइड बाई सिग्मा fi। तो x कितना बचे आपका 0, 1, 2, 3, 4, f कितना है 1, 0, 9, 65, 22, 3 एंड 1, xf कितना है 0, 65, 44, 9 एंड 4। इसका सम करते हैं तो ये आएगा आपका 200, और इसका सम करते हैं तो ये आ रहा है आपका 122। ठीक है, तो जब इसका मीन निकाला जाएगा तो मीन कितना आएगा, मीन दैट इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू 122/200 एंड इट कम्स आउट टू बी 0.61। ओके, तो आपका जब मीन निकल गया, अब आपकी रिक्वायरमेंट क्या बचती है, अब आपकी रिक्वायरमेंट बचती है प्रोबेबिलिटीज़ निकालने की। ओके, तो P0 कितना आएगा बेटा, P0 आएगा आपका e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज़ टू पावर 0 डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल, दैट इज e रेज़ टू पावर माइनस 0.61, और इसकी वैल्यू जब आप कैलकुलेटर से चेक करेंगे तो ये आएगी 0.5432। ओके, सिमिलरली P1 निकालने के लिए आप रिकरेंस रिलेशन का यूज़ करेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा, यूजिंग रिकरेंस रिलेशन। रिकरेंस रिलेशन क्या था, px प्लस 1 इज इक्वल टू लैम्डा बाई x प्लस 1 इंटू px। तो P1 क्या आएगा बेटा, P1 इज लैम्डा बाई 1 इंटू P0। P0 कितना था 0.5432। तो जब इसकी कैलकुलेशन आप करेंगे तो आपको मिलेगा 0.3315। ओके, P2 जब आप निकालने लगेंगे तो P2 के अंदर क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले में x की जगह आ जाएगा आपका 1, तो लैम्डा डिवाइड बाई 1 प्लस 1 2 इंटू P1 कितना है 0.3315, तो ये करीब 1.1 के आसपास आएगा, यह आएगा आपका 0.1011। सिमिलरली जब P3 करने लगेंगे तो कितना आएगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप जब फिटिंग करनी होगी तो आप क्या करेंगे, अब सबसे पहले इनकी सभी की आप प्रोबेबिलिटीज़ निकाल लेंगे, और प्रोबेबिलिटीज़ निकालने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक फिर से फिगर बनानी है और फिर से टेबल बनानी है लास्ट में। और वो टेबल कैसे बनेगी, टेबल के अंदर आप सबसे पहले कॉलम बनाएंगे x 0, 1, 2, 3, 4, आप यहाँ लिखेंगे ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज कितने बचे 109, 65, 22, 3, 1। उसके बाद आप लिखेंगे px, मतलब प्रोबेबिलिटीज जो आपने निकाली हुई हैं, तो 0 के लिए कितनी थी 0.5432, और यहाँ पे आया आपके पास 0.3315,
0.1011 और लास्ट में आप एक कॉलम बनाएंगे। इसमें लास्ट का कॉलम कैसा बनेगा? लास्ट का कॉलम बनेगा आपका फ्रीक्वेंसीज का, और फ्रीक्वेंसीज का कॉलम क्या बोलता है? फ्रीक्वेंसीज का कॉलम वर्डिंग लिखनी है आपने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, और ये क्या होती है आपकी? ये होती है आपकी n इंटू पी एक्स। एन का मतलब क्या होता है? तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज कितना है आपके पास? 200। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? पी एक्स इंटू 200। तो ये बच्चे चेक करेंगे आप, तो ये बनेगा आपका 108.6, 66.3, 22.2, 4.1 एंड 0.7। अब इशू क्या है बच्चे कि आप, क्योंकि आप डिस्क्रीट में काम कर रहे हो, पर्सन डिस्क्रीट होता है तो डेसिमल में आंसर्स नहीं हो सकते हैं। तो डेसिमल में आंसर नहीं होंगे तो आप क्या करेंगे? इन्हें जस्ट आप राउंड ऑफ करेंगे, और सम कितना आना चाहिए? 200। इसका आपका ध्यान रखना है, क्योंकि आपके टोटल फ्रीक्वेंसी का सम कितना था? 200 था, तो ये सम भी आपका 200 ही आना चाहिए। ओके, यदि ये 200 नहीं आ रहा है तो राउंडिंग ऑफ के टाइम पे आप क्या कर सकते हैं? आपको यदि मान लो दिक्कत आ रही है, ये 199 आ जाएगा, तो आप क्या करेंगे? इसको राउंड ऑफ करते वक्त 67 कर सकते हैं। और यदि आपको दूसरा केस बनता है कि मान लीजिए आपका 201 आता है, तो इस 108 को आप क्या कर लीजिए? 108 ही रख लीजिए। मतलब डेसिमल पॉइंट ऑफ व्यू पे आप इधर उधर करके भी आपको अल्टीमेटली जो टोटल निकालना है वो उतना ही होना चाहिए जितना सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज है। ओके, तो फिर से समझ लीजिए कि यदि आपके पास फिटिंग ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन आता है तो सबसे पहले स्टेप में आपने क्या करना है? आपने उसका मीन निकालना है। मीन किसके बराबर होगा? मीन आपका लैम्डा के इक्वल होगा। लैम्डा करने के बाद आप क्या निकालेंगे? आप P0, P1, P2, P3, P4, P5 जितने भी x की वैल्यूज़ हैं उसके लिए आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। अब डायरेक्ट फार्मूले से निकालना चाहें डायरेक्ट निकाल लें, और यदि आप इसका रिकरेंस रिलेशन का यूज़ करना चाहें तो रिकरेंस रिलेशन का यूज़ कर लें, उससे आपका काम थोड़ा आसान हो जाता है। उसके बाद आपने क्या करना है? नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आप उसे टोटल फ्रीक्वेंसी से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब इस पूरे के पूरे चैप्टर टॉपिक के अंदर हमारे 2 आर्टिकल हमारे पास बचे हैं करने के लिए। एक आर्टिकल बचा है हमारे पास फाइंड द मीन ऑफ द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा है फाइंड द वेरिएंस ऑफ द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो मीन ऑफ द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए मीन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? किसी भी, ये होता है आपका एक्स पी एक्स। ओके, तो एक्स पी एक्स, पॉइसन में पी एक्स कितना होता है? ई रेज टू पावर माइनस लेमडा, लेमडा रेज टू पावर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल। ओके, डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल। अब एक्स फैक्टोरियल के केस में क्या हुआ? एक्स फैक्टोरियल के केस में हो रहा है ई रेज टू पावर माइनस लेमडा, लेमडा रेज टू पावर एक्स। एक फैक्टोरियल आप यहाँ से कट कर सकते हैं। ओके, जब एक फैक्टोरियल आपने यहाँ से कट कर दिया तो अब क्या हो गया? यहाँ पे x की वैल्यू पहले तो चल रही थी यहाँ पे कहाँ से कहाँ? 0 से इन्फिनिटी चल रही थी, अब ये चलेगी 1 से इन्फिनिटी। क्यों 1 से इन्फिनिटी? इसलिए चलेगी क्योंकि -1 फैक्टोरियल तो आप लिख नहीं सकते हैं, तो जीरो अलाउड नहीं है, इसलिए 1 पे चले जाएंगे आप। अब आप एक काम करें, लैम्डा एक बाहर कॉमन निकाल लीजिए। बाहर एक लैम्डा कॉमन निकाला तो क्या आया ये? ठीक है, अब इसमें ध्यान दें, अब 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा? सबसे पहले ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा भी कॉमन निकाल लेते हैं। 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 1 पुट करते ही 1 आएगा। ये 2 पुट करते क्या आएगा? लैम्डा। 3 पुट करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। 3 पुट करेंगे तो लैम्डा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ओके, अब ये चीज़ क्या है बच्चे? क्लास की शुरुआत में मैंने तुम्हें एक चीज़ बोली थी, ई रेज टू पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है? 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस लैम्डा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये वही चीज़ है बिल्कुल। तो ये चीज़ क्या हुई? लैम्डा ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा ई रेज टू पावर लैम्डा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर क्या है? लैम्डा। देयरफॉर यू कैन से मीन ऑफ द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज लैम्डा। तो अब इसके इसी के ऊपर कंटिन्यूस करते हैं। अब यदि इसमें मान लीजिए मुझे वेरिएंस निकालना है, तो वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस इज गिवन बाय सिग्मा स्क्वायर इज सिग्मा एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस सिग्मा एक्स पी एक्स का होल स्क्वायर। अब एक चीज़ समझ लीजिए आप, ये चीज़ तो आप निकाल के आ रहे हैं ऊपर, क्या था ये लैम्डा था। तो अपने को क्या रिक्वायरमेंट रहेगी? अपने को चाहिए एक्स स्क्वायर पी एक्स।
एक्स स्क्वायर पी एक्स चाहिए तो एक्स स्क्वायर पी एक्स के लिखने के मामले में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर नाउ करके लिखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक्स स्क्वायर पी एक्स कितना हुआ, सिग्मा एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज टू पावर एक्स डिवाइड बाय एक्स फैक्टोरियल। एक्स इज मूविंग फ्रॉम कहाँ से, 0 से इन्फिनिटी, जैसे पिछली बार किया था बेटा बाइनोमियल के केस में। वैसे ही हम एक्स स्क्वायर को ब्रेक करके क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर को ब्रेक करके हम लिखेंगे एक्स इंटू एक्स माइनस वन प्लस एक्स। बाइनोमियल के केस में ही मैंने आपको बताया था। चलिए मैं यहाँ पे रफ में करके दिखा देता हूँ आपको। इसमें माइनस एक्स ऐड कर दीजिए, एक एक्स ऐड कर दीजिए और एक एक्स सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, एक्स कॉमन निकाल लीजिए। तो वो चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है। और ये चीज़ क्या होगी, ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा को आप बाहर ले सकते हैं, लैम्डा रेज टू पावर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल। ये कितना बना बेटा, ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा, चलिए ऊपर की तरफ लिखता है, ये कितना बनता है, ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा, समेशन को आप अलग अलग कर सकते हैं, एक्स माइनस वन लैम्डा पावर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स फैक्टोरियल प्लस ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा एक्स लैम्डा रेज टू पावर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल। ओके, अब यहाँ पे क्या बना बेटा, ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा, एक्स इज मूविंग फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी, लैम्डा स्क्वायर यहाँ से आप कॉमन निकाल लीजिए, लैम्डा की पावर एक्स माइनस टू डिवाइड बाई एक्स माइनस टू फैक्टोरियल। और ये चीज़ क्या है, दिस इज लैम्डा, लैम्डा कहाँ से, फ्रॉम, आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1, फ्रॉम 1। ओके, तो यहाँ पे अब क्या आ गया बेटा, लैम्डा स्क्वायर ई की पावर माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन प्लस लैम्डा। ये चीज़ क्या होती है, 2 मिनट पहले हमने डिस्कस की है, ये आपका ई रेज टू पावर लैम्डा ही होता है। तो ई रेज टू पावर लैम्डा से ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा कैंसिल आउट हो गया, तो ये चीज़ आई आपके पास बेटा लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा। तो इसे इक्वेशन नंबर आप 3 दे दीजिए। तो पुट इन वैल्यू यूजिंग 1, 2 एंड 3, तो वेरिएंस कितना है आपका, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू लैम्डा। So you can see mean and variance in case of Poisson distributions are same, that is both are lambda. And now as per previous we will give you 4 to 5 questions in the reference, and for any queries you can mail us on the mail given in the subscription.